بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعد حضرتها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک۔ پہلے جو ہمارا ہو گیا تھا وہ ہم نے باب افعال کو کر لیا تھا نا، باب افعال، ہمارا باب افعال ہو گیا تھا، اور باب افعال کا فعل ماضی مضارع امر تینوں ہو گئے تھے نا جی، خدا کا لاکھ شکر، تینوں ہو گئے تھے ہمارا۔ تو اب ہم آتے ہیں باب افعال کی معنی میننگ میں آتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے، کیا ریزن ہوتا ہے کہ ہمیں باب افعال کے اندر جانا پڑتا ہے، یعنی یہاں ہم اپنے لفظ کو جو ہے وہ باب افعال کے اندر لے جاتے ہیں، کیا ریزن ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے باب افعال کا فعل ماضی مضارع امر کر لیا، اب ہم آتے ہیں باب افعال کی میننگ کی طرف کہ آخر جب ہم باب افعال کوئی بھی لفظ کو، جو ہمارے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں، تین جو ہمارے پاس روٹ ورڈز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو باب افعال کے اوپر لے جاتے ہیں تو ان کی میننگ کیا ہو جاتی ہے، کیا میننگ بنتی ہے۔ سب سے پہلے جو باب افعال کی میننگ بنتی ہے، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے گا جب ہم باب افعال میں لے جائیں گے تو سب سے پہلے میننگ ہم جو ہمارے پاس ایک لفظ ہوگا جو لازم ہوگا ہم اس کو متعدی بنا دیں گے، حرف لازم کو متعدی بنا دیں گے۔ ابھی آپ سب پوچھیں گے کہ لازم، میں ابھی پوچھوں گی، آپ نہیں پوچھیں پہلے میں پوچھتی ہوں کہ لازم اور متعدی کسے کہتے ہیں؟ پھر لازم اور متعدی میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جو جس کے اندر جو فعل اور فاعل ہوتا ہے تو وہ میننگ فل ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں وہ جملہ۔ ہاں صحیح، بالکل صحیح۔ اور متعدی یعنی کہ ایسا جملہ کہ فعل اور فاعل اور مفعول تینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، فار ایگزامپل میں نے کھایا، میں سوئی، تو یعنی کہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ جب وہ ہو جاتا ہے تو اوکے میننگ فل ہو جاتا ہے۔ صحیح، لیکن فار ایگزامپل اگر میں نے کہا کہ ضرب، میں نے مارا، کس کو مارا، تاکہ وہ میننگ فل ہو، اس کے بعد ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت اچھا۔ چلے ایک دفعہ بہت اچھا عظمت آپا آپ نے کہا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے میں لازم اور متعدی کو کھولوں تاکہ ہم جب باب افعال کی میننگ کریں نا تو ہمارے لیے بہت زیادہ کلیئر ہو۔ صحیح، بہت اچھا عظمت آپا، ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست بتایا۔ ہمارے پاس ابھی اس کو آپ نوٹ کریں گے، اس کو آپ بہت اچھے سے آپ نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے پاس فعل کی فاعل اور مفعول کے حساب سے، ہمارے پاس فاعل اور مفعول کے حساب سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ہمارے پاس فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معلوم، اس کو آپ نوٹ کرتے جائے گا، ایک ہے مجہول، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر فعل کی جو قسمیں ہیں نا، یہ فعل کی دو قسمیں ہوگی، فعل معلوم، فعل مجہول۔ فعل معلوم جو ہے، فعل معلوم کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل معلوم وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل معلوم، اس کو نوٹ کریے گا، فعل معلوم میں ایک فعل ہوگا، ٹھیک، فاعل ہوگا، اور اس میں دو ہم کرتے ہیں کہ مفعول ہوگا اور مفعول نہ ہو، پاسبل ہے کہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مفعول نہ ہو اور مفعول ہو، یہ ہمارے پاس فعل معلوم کی قسمیں ہو گئی۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول خالی وہ فعل ہوتا ہے
जिसमें फाइल ना हो, जिसमें मफऊल फाइल की जगह पर हो, जो मफऊल नाइबे फाइल हो। ओके, ये हो गया हमारा फेल की दो किस्में। इसको अब फिर से नोट करेंगे। अच्छा, फेल की दो किस्में हैं, मालूम मजहूल। ओके, अच्छा, मजहूल में फाइल नहीं होता, फेल होता है। मैं इसको यूं करती हूँ, फेल, अच्छे से इसको लिखती हूँ ताकि हमारे लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। फेल मजहूल, फेल मजहूल में क्या चीज़ें होती हैं? फेल मजहूल में हमारे पास फेल होता है और फाइल नहीं होता, फाइल नहीं होता, या हम कहें कि विदाउट फाइल, विदाउट, हाँ, विदाउट फाइल। लेकिन जब फाइल नहीं होता तो तीसरा पॉइंट क्या है? मफऊल, मफऊल फाइल की जगह, ठीक है, बैठता है उसकी प्लेस पर, उसको कहते हैं नाइबे फाइल। ओके, ये हमारा हो गया फेल की एक किस्म। फेल की जो दूसरी किस्म है, ये अच्छे से आप नोट करिएगा। फेल की जो दूसरी किस्म है वो है फेल मालूम, और फेल मालूम को हम डिवाइड करेंगे इस तरह से कि फेल मालूम में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि फेल हो, नंबर 1 फेल हो, और नंबर 2 जो है फेल मालूम जो है वो फेल, फाइल, मफऊल, तीनों पे तीनों चीज़ें उसमें आती हैं। नंबर 3 जो फेल मालूम की किस्म है वो है जो फेल और फाइल पर बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, फेल और फाइल पे बात ख़त्म हो जाती है। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम फिर से आएंगे कि जब हमारी बात फेल और फाइल पे ख़त्म हो जाएगी, जब हमारी बात जिस फेल के अंदर फेल, फाइल, मफूल होगा उसको कहते हैं फेले मुताद्दी। अभी मैं समझाऊंगी ना, हमारे लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बाद में हम इसमें आते हैं। और जो फेल जो है वो फेल और फाइल पे ख़त्म होता है उसको कहते हैं लाजिम, लाजिम। अच्छा, मजहूल में अभी अब देखिए, मजहूल में क्या होता है? फाइल नहीं होता, मफऊल होता है। लाजिम में फाइल होता है, मफऊल नहीं होता। ये आपको जहन में रखना है। ये पार्ट अगर आपके जहन में रह गया ना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास फेल की दो किस्में हैं, फेल मालूम, फेल मजहूल। मजहूल में मफऊल होता है, फाइल नहीं होता, बात खत्म। मालूम में फेल, फाइल, मफूल भी एक उसकी किस्म होती है, फेल, फाइल, मफूल, और दूसरी किस्म होती है मालूम की कि फेल और फाइल पे बात ख़त्म हो जाती है। जो मुतअद्दी का मतलब होता है आगे बढ़ना, मुतअद्दी यानी तजावुज़ करना, यानी हद को क्रॉस करना। फेल फाइल से बढ़कर मफूल तक पहुंच गया, मुतअद्दी यानी अदब हो गया, आगे बढ़ के आ गया। लाजिम में बस क्या होता है? फेल और फाइल। यहाँ ये दो चीज़ें लाजिम है, इससे तीसरी चीज़ की लाजिम नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको कहते हैं फेले लाजिम, ठीक है। फिर से मैं आपको कहूँगी, नोट करिएगा, मजहूल और लाजिम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हम जब फेले मजहूल बनाते हैं ना, फेले मालूम से बनाते हैं, और हम जो मजहूल बनाते हैं वो मुतअद्दी से बनाते हैं, लाजिम से नहीं बना सकते। इसको नोट, क्योंकि लाजिम में सिर्फ फेल और फाइल होता है, मजहूल में सिर्फ मफूल होता है, फेल और मफूल होता है। मजहूल को फाइल की जरूरत ही नहीं होती, लाजिम को मफूल की जरूरत नहीं होती। क्लियर? क्लियर हो? मकसूदा जी, जी जी जी, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जी आप जी, इसमें एक एक एग्जांपल देंगे तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। शायद सब लोग बहुत होशियार है, लेकिन मेरे मगज में नहीं जाएगा एग्जांपल नहीं हो मैं अभी उसी एग्जाम्पल को देने वाली हूँ साबिरा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना मैं आगे नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे आप सब कहेंगे, नहीं, जब तक आप मुझे सब कहेंगे ना कि हाँ हमारे लिए क्लियर हो गया, तब मैं आगे जाऊंगी, ठीक है। अब हम आते हैं
फ़ेल मुतअद्दी में। सबसे पहले साबिर आपा हम फ़ेल मुतअद्दी में आते हैं, ठीक है। मुतअद्दी बनाने का जो तरीका होता है उसको आप नोट करेंगे, लाजिम को नोट करेंगे और मजहूल को नोट करेंगे। फिर बाबे इफ़आल में फिर हम दोबारा आएंगे। आपको पता है अगर हमारे लिए 3 बाब, बाबे इफ़आल, बाबे तफ़ईल और बाबे मुफ़ाइला, जब हमें ये 3 बाब समझ में आ जाएंगे ना, बाकी बाब इतने आसान है, वो आप खुद ही, मैं बस आपको लिख के बोर्ड पे दूंगी और वो खुद ब खुद आ जाएंगे। हमारे लिए जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और जिसमें मेहनत है वो 3 बाब है। उसके बाद बहुत इजी, पानी की तरह। चले मैं आपको सबसे पहले जो मिसाल देती हूँ फ़ेले मालूम की भी मिसाल देती हूँ और फ़ेले मालूम मुतअद्दी की मिसाल देती हूँ, ठीक है। फ़ेले मालूम मुतअद्दी की सबसे पहले जो साइन होती है ना, वो निशानी होती है साबिर आपा, वो ये होता है कि मैं एक काम करती हूँ, पहले इसको मैं पिक्चर लेके ना आपको भेजती हूँ और मैं इसको मिटाती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए कंटिन्यू रहे ना सिलसिला। चले अच्छा, यहाँ पर ये तो हो गया, ओके, यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम आते हैं पहले मुतअद्दी और लाजिम को हम थोड़ा सा चेक करेंगे, ओके। जो फेल मालूम, क्योंकि दोनों मालूम है, क्योंकि दोनों फेल मालूम है, ओके। अब उसमें मालूम का मतलब क्या होता है? फेल मालूम होता ही वो फेल है जिसमें फाइल हो। फेल मालूम में वाजिब है, फेल मालूम में वाजिब है फाइल का होना। फेल मजहूल में फाइल का ना होना वाजिब है, ठीक है। ये आप इसका इन दोनों को पहले हमें फ़र्क जो है अच्छे तरीके से हम इसको याद कर लें। मालूम में वाजिब है कि फ़ाइल हो और मजहूल में वाजिब है कि मफ़ऊल हो और फ़ाइल ना हो, ओके। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम आते हैं फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मालूम को हम करते हैं। फ़ेल मालूम की 2 किस्में हैं, एक लाजिम और एक है मुतअद्दी। पहले मैं मुतअद्दी को करती हूँ। आप देखिए मुतअद्दी में क्या होता है, मुतअद्दी के फ़ेल के पहचानने का तरीका क्या होता है कि जब आप एक फ़ेल रखते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल है ज़रब, ठीक है, कतल, कतल, ज़रब, कतल। अभी मैं कहती हूँ ज़रब मुहम्मदुन, मुहम्मदुन हामिदन, हामिदन। मारा मोहम्मद ने, क्योंकि पेश लिया है ना, हामिद को, क्योंकि ज़बर डी है। तो देखिए हमारा जुमला कंप्लीट हुआ ना, मारा मोहम्मद ने हामिद को। यहाँ पर ज़रब, यहाँ फ़ेल माजी भी हो सकता है, फ़ेल मुज़ारे भी हो सकता है और फ़ेल आमर भी हो सकता है, ठीक है। फ़ेल में तीनों फ़ेल हो सकते हैं। यज़रिबु, मार रहा है मोहम्मद हामिद को। इज़रिब, मारो मोहम्मद हामिद को, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फ़ेल माजी हो, मुज़ारे हो, अम्र हो। कतलल, कतलल, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ कतलल यजीदु अल हुसैन, यजीद ने कत्ल किया इमाम हुसैन को। अब देखो जब हम एक सेंटेंस बनाएं, कोई भी लफ्ज़ आप ले लेते हो, आपको पता नहीं है कि ये लाजिम है या मुतअद्दी है, तो उसमें आप फ़ेल में जब आप बनाते हो ना ज़रब, तो जब मफ़ऊल उसके साथ आप ले आओ और उर्दू में उस मफ़ऊल के ऊपर का, की, को अगर सेट हो जाए तो वो फ़ेल मुतअद्दी होगा। जैसे ज़रब मुहम्मदुन हामिदन, मारा मोहम्मद ने हामिद को देखिए फिट हो गया ना। कतल यजीदुल हुसैन, कत्ल किया यजीद ने इमाम हुसैन को, बिल्कुल फिट आया ना। अब मैं आपको एक और मीनिंग बताती हूँ। चलिए अच्छा, अब हम साबिर आपा यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं आपको एक और जुमला देती हूँ। अभी 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 आप इसको आप चेक करेंगे कि ये जुमला ठीक है या गलत है, ओके। अभी मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर भी कोई भी हमारा फ़ेल आ जाए और उस फ़ेल के बाद फ़ाइल तो लाज़िम है ना, फ़ाइल तो ज़रूरी है। फ़ाइल लाज़िम में भी होगा, मुतअद्दी में भी। फ़ेल मालूम चाहे लाज़िम हो मुतअद्दी हो, दोनों में फ़ाइल का होना वाजिब है। लेकिन मफ़ऊल जो है लाज़िम में नहीं होता और मुतअद्दी में होता है। अच्छा, जब हम यहाँ पर कहा ज़रब मुहम्मदुन हामिदन, मारा मोहम्मद ने हामिद को, कत्ल किया यजीद ने हुसैन को, एकदम फिट आ गया ना। अब मैं कहती हूँ जलस,
जलस 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 करीमो, हाँ जलस करीमो बैठा, करीम जलस करीमो कुर्सियन, कुर्सियन, हाँ कुर्सियन, ठीक है। करीम बैठा कुर्सी को, ठीक है। ना परफेक्ट सर, मैक्रो नहीं हुआ ना, तर्जुमा बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो रहा ना साबिरा आपा। करीम बैठा कुर्सी पोजीशन को, आएगा। अलल कुर्सी, अलल कुर्सी, कुर्सी ऊपर, इसमें प्रोपोजिशन आएगा, इसमें हर्फ आएगा कतब, ना। हाँ कतब तो अल कलम, मैंने लिखा कलम को, सही है। बिल कलम, नहीं बिल कलम होना चाहिए। हाँ अभी आप देखें कि जहाँ पर भी हमारा फेल आ जाए उसके बाद फाइल आ जाए और हम मफऊल को ले आए और हमारा जुमला का की को के साथ सेट ना होता हो तो वो फेल हमारा लाजिम होगा। जलस करीमुन, बैठा करीम कुर्सी को, गलत है, कुर्सी को कैसे बैठ सकता है, अलल कुर्सी। तो ये जो अला है ना, अगर हमें किसी की हेल्प लेनी पड़े और हेल्प के बाद वो जुमला सेट हो जाए, मफऊल बन जाए, तो वो फेल हमारा लाजिम होता है। कतब तो मैंने लिखा कलम को, गलत है ना, मैंने कलम को कैसे लिखा, मैं कलम को नहीं लिख सकती। कतब तो बिल कलम, मैंने कलम के जरिए से लिखा, कलम की मदद से लिखा। तो यहाँ पर कतब जलस जो है ये लाजिम हो गया और ज़रब और कतल मुतअद्दी हो गया। क्लियर हुआ? हमारे जितने भी मेरे दर्स है ना, उनमें सबसे मुश्किल तरीन जो दर्स है, जो जितने भी हमारी ग्रामर है उसमें सबसे मुश्किल तरीन जो ग्रामर है वो है हुरूफ इले वाली। जैसे नहीं वाव, जैसे हम कहते हैं वाव, जिसमें वाव या और अलिफ आता है, वो सबसे मुश्किल ग्रामर होती है, क्योंकि कबला से काला हो जाता है और फिर काला से यकूल हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग आती है ना, काट कूट होती है। और उसके बाद जो थोड़ा सा समझना और याद रखना होता है वो लाजिम और मुतादी और मजहूल होता है। ये तीनों जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। चार चीज़ें मैं आपको कहती हूँ, चार चीज़ों को आज जो हमने लेसन पढ़ा और उस दिन जो हमने लेसन पढ़ा, ये वाजिब है हमारे ऊपर याद रखना अगर हमने तर्जुमा सीखना है तो। लाजिम, मुतादी, बाबे इफ़आल और फिर मजहूल, इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो उनका कैसे हम तर्जुमा कर सकते हैं। क्लियर? अभी एक और चीज़ नोट करें, एक और चीज़ में मैं आती हूँ। अब हमने कहा कि मुतअद्दी में फ़ेल होता है, फ़ाइल होता है, मफ़ूल होता है। लाजिम में फ़ेल और फ़ाइल होता है। अलल कुर्सी बिल कलम को हम नहीं कह सकते, इसको तो हम बाद में कहते हैं कि लाजिम को मुतअद्दी बनाने का तरीका, तो ये बाद में बात करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन अभी जो है वो कतब तो बात ख़त्म, मैंने लिखा, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये भी फाइल का ही काम कर रहे हैं ना। चले अब जब मैं आती हूँ इसके ऊपर तो इसको आप नोट करें। अभी एक और चीज़ को जल्दी से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास कि अब हमें पता है कि लाजिम जो है फ़कत फ़ाइल रखता है, मुतअद्दी जो है वो फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तीनों रखता है। अब जब मुझे मजहूल बनाना होगा, फ़ेल मजहूल जब मुझे बनाना होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं फ़ेल मजहूल लाजिम से नहीं बनाऊंगी, मैं मुतअद्दी से बनाऊंगी। सही? और अगर मुझे फ़ेल यानी लाजिम से मुतअद्दी बनाए और फिर मुतअद्दी से फ़ेल मजहूल बनाई हो? नहीं, हाँ। आप तनवीरा आपा, हाँ, ये लाजिम से आपने बनाया मुतअद्दी है ना, बहुत आपने अच्छी अला बात। कुर्सी करके ना और फिर जड़ डाल तनवीरा आपा, आपने मेरा जो आने वाला लेसन है ना उसको बोल दिया। नंबर 1 बहुत अच्छा, लेकिन उसको थोड़ा सा आने वाला लेसन। ओके, माशाल्लाह से। चलिए इसको फिर हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है। पहली बात ये कि फ़ेल लाजिम से मजहूल बनता ही नहीं, ओके।
लाजिम से हम कैसे Okay. मजहूर बना सकते हैं? आप देखो कि जब हम हाँ, लाजिम से मजहूर लाजिम से बनाएंगे, मुत्तहदी मैंने बोला, मजहूल नहीं। बहुत ही अच्छी लाजिम से खूबसूरत बात। मुत्तहदी बनता है और जबरदस्त। मुत्तहदी से फेल मजहूल बनता है यूं। हाँ, पर तनवीर अम्मा ये मैं आखिर में बताऊंगी, क्योंकि अगर अभी बोल दिया ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है? जी, इसको ओके, स्टेप बाय स्टेप। ओके, ठीक है। ठीक है। Thank you. पहली बात, हम पहला पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि लाजिम से मजहूल नहीं बनेगा, पहली बात। ठीक है? और दूसरी बात ये कि जो मजहूल बनाएंगे वो हम बनाएंगे फेल मुतअद्दी से, यानी जिसमें फेल और फाइल होता है। तो मुतअद्दी को हम जैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया जुलिसर, बिठाया गया। किसको बिठाया गया, कैसे बिठाया गया? जुलिसा कुर्सियन हो सकता है, नहीं हो सकता, कुर्सी को बिठाया गया, गलत हो रहा है ना? बिठाया गया कुर्सी को, गलत हो रहा है ना तर्जुमा? तो हम क्या करेंगे, पहले लाजिम को हम साइड पे रखते। पहला पॉइंट कि लाजिम से लाजिम से मजहूल नहीं बनता, और अगर मुझे लाजिम से मजहूल बनाना है तो फिर मुझे उसके आगे प्रोसीजर है, उसमें जाएंगे। लेकिन पहली बात कि जब मुझे मजहूल बनाना है तो मैं पहले बनाऊंगी मजहूल मुतादी से। हामिदुन, मारा गया हामिद। किसने मारा हामिद को, हमें नहीं पता। ज़ुरिबा, बस मारा गया हामिद। ये हामिद यहाँ मफूल है, यानी नायब फाइल पेश क्यों लिया है तो मफूल, लेकिन पेश लिया है नायब फाइल होने की वजह से, क्योंकि ये फाइल की जगह पर बैठ रहा है, खुद मफूल है, जगह फाइल की उसने ली है, इस वजह से उसने पेश लिया। तो बस इतना आप याद करें कि हमने मुतअद्दी से जो है वो फेले मजहूल बनाना है। हम फेले लाजिम से हम मुतअद्दी नहीं बना सकते, लाजिम से मजहूल नहीं बना सकते। क्लियर? ये बात, 2 पॉइंट। साबिर आपा क्लियर हुआ? जी साबिर आपा। साबिर आपा क्लियर हुआ? चले, अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे बताइएगा। जी ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह जी कट हो जाता है मेरे यहाँ थोड़ा। जी कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी। तो अच्छा, यहाँ तक मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगी इंशाल्लाह, और आज रात को मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगी जो हमने इसमें फाइल और इसमें मफूल बनाया था। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा लाजिम और मुतअद्दी से मजहूल बनता है, और मुतअद्दी से हम बनाते हैं ज़रब, मतलब ज़ुरिब मुहम्मदुन। फाइल को निकाल लेंगे, मफूल जो है वो फाइल की जगह पर आएगा, और जो पेश ज़ेर ज़बर पेश फाइल लेता है वो मफूल ले लेगा, क्योंकि उसकी जगह पे बैठा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्लियर हुआ एलिजा? जी अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देंगे। मुतअद्दी से तो हमारी कोई बहस ही नहीं है, मुतअद्दी तो बहुत सिंपल होता है, सादा सा होता है। ठीक है, हमारी जो ज़्यादातर बहस है ना वो हमारी होती है लाजिम से। अब अगर आपको लाजिम को मुतअद्दी बनाना है तो आप क्या करेंगे? अब आपको लाजिम को मुतअद्दी बनाना है तो आप क्या करेंगे? जैसे नज़ल, चले जलस, चले नज़ल जलस, उतरा एक मर्द, नीचे उतरा एक मर्द, बात खत्म। किसको उतरा, कहाँ को उतरा, कुछ पता नहीं। जलस, बैठा एक मर्द, बात खत्म। लेकिन अगर आप उसको मुतअद्दी बनाएंगे तो आप क्या करोगे? क्योंकि तनवीर अब आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि लाजिम को अगर हमने मजहूल बनाना है, पहली बात ये कि लाजिम मजहूल नहीं बनेगा, और अगर हमने लाजिम को मजहूल बनाना है तो सबसे पहले खुद लाजिम को हमें मुतअद्दी बनाना पड़ेगा, खुद लाजिम को मुतअद्दी बनाना पड़ेगा। और मुतअद्दी बनाने के, फेले लाजिम को मुतअद्दी बनाने के 3 तरीके हैं। अच्छा, अब मैं इसको बिठाती हूँ। लाजिम को मुतअद्दी बनाने के 3 तरीके हैं।
سب سے پہلے بعد میں آتی ہوں باب کی طرف تاکہ ہمارے لیے بہت ہی اچھے سے کلیئر ہو جائے. اوکے, جب آپ لازم سے متعدی بناتے ہیں تو سب سے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے لازم کو متعدی بنانے کا وہ یہ ہوتا ہے, 3 طریقے ہیں فعل لازم کو متعدی بنانے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, جب آپ بناتے ہو تو حرف جر کے ذریعے سے, حرف جر کے ذریعے سے آپ فعل لازم کو متعدی بنا سکتے ہو. جیسے ہمارے پاس ہے جلسہ, ٹھیک ہے, جلسہ ایک مرد بیٹھا, علی الکرسی, تو ہم کیا کہیں گے کہ جلسہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے, اس کے اندر ایک ہو چھپا ہے جو اس کا فاعل ہے, اور علی الکرسی جار و مجرور مل کر مفعول بنے, تو ہو گیا نا متعدی. صحیح, ہم کہیں گے جار و مجرور مل کر مفعول بنے, ٹھیک ہے نا, فعل بھی آ گیا, فاعل بھی آ گیا اور مفعول بھی آ گیا. ٹھیک, یہاں ہم کہیں گے کہ ہم نے فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنایا. فعل لازم کو متعدی بنانے کا سب سے پہلا طریقہ ہم حرف جر لاتے ہیں, اور پھر حرف جر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ حرف جر جار و مجرور مل کر مفعول بنے. اوکے, جیسے میں کہتی ہوں ذہب تو, فار ایگزامپل میں کہتی ہوں ذہب تو میں گئی الی المسجد, تو یہاں پر پھر سے میں اس کو کرتی ہوں ذہب, ہو گیا فعل, ذہب فعل ہو گیا, تو ہو گیا فاعل, اس میں فاعل نہیں, ہاں تو ہو گیا فاعل, اس میں فاعل نہیں. اوکے, تو ہو گیا فاعل, ہاں, اور یہاں الا ہو گیا جار و مجرور مل کے مفعول ہو گیا. بہت زبردست, حرف جر اور مجرور, تو جار و مجرور مل کر مفعول ہو گئے. ہمیں جب متعدی ہم بناتے ہیں تو متعدی میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, فعل, فاعل, مفعول. تو آپ نے دیکھا ہم نے فعل لازم کو ایک دفعہ حرف جر کے ذریعے سے ہم نے اس کو متعدی بنا دیا. اوکے, پھر میں کہتی ہوں کتب تو کتبا, کتبو بالقلم, ٹھیک ہے, قلم, کتبو بالقلم. کتبہ ہو گیا ہمارا فعل, واو ہو گیا ہمارا فاعل, با ہو گیا حرف جر, اور قلم ہو گیا مجرور. لیکن ہم کہیں گے جار و مجرور مل کر مفعول بنے, ٹھیک ہے, جار و مجرور مل کر مفعول بنے. یہ بن گیا ہمارا فعل متعدی, کیونکہ فعل متعدی میں فعل, فاعل, مفعول چاہیے. فعل یہاں پر بھی فعل, فاعل, مفعول ہے, یہاں پر بھی فعل, فاعل, مفعول آ گیا. تو فعل متعدی لازم کو متعدی بنانے کا ایک طریقہ حرف جر ہے. صحیح, ایک طریقہ حرف جر ہے. عظمت آپا آپ نوٹ کریے گا, نیکسٹ منڈے کو میں بھول جاؤں گی, میرے دماغ سے نہ نکل جائے, آپ مجھے یاد دلائیے گا کہ جب ہم حرف لازم کو متعدی بناتے ہیں حرف جر کے ذریعے سے تو ہم اس کو صرف کیسے کرتے ہیں, کیونکہ اس کے صرف کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے. ٹھیک ہے, میں بھول جاؤں گی تو مجھے تھوڑا سا یاد دلا دیجیے گا. اوکے, یہاں پر ایک طریقہ ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ہم نے فعل لازم کو متعدی بنایا حرف جر کے ذریعے سے. کلیئر, اب یہ متعدی ہو گیا, اب یہ متعدی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ فعل متعدی بن گیا. اوکے, پر شرط کیا ہے کہ حرف جر کا ہونا ضروری. لیکن جو خود بخود آٹومیٹکلی جو ورڈ, جو لفظ متعدی ہوتا ہے اس کے لیے حرف جر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کلیئر. ابھی ہم آتے ہیں دوسرا طریقہ فعل لازم کو متعدی بنانے کا, جو ہمارا آج کا لیسن ہے. وہ کون سا طریقہ, میں مٹا دوں اس کو, یہ مٹا دوں. جی, باب افعال کا طریقہ. بہت زبردست سعید آپا, بہت ہی بیسٹ آپ نے کہا. اچھا, جو ایک دوسرا, لینا, جی بہت ہی اچھا.
बाबे इफ़आल को फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाने का जो दूसरा तरीका है हमारे पास, पहला तरीका है हरफ़े जर के ज़रिए से, दूसरा तरीका है उसको हम बाबे इफ़आल पे ले जाएंगे, तीसरा तरीका है बाबे तफ़ईल पे ले जाएंगे। तो हरफ़े जर, बाबे इफ़आल और बाबे तफ़ईल, ये तीनों जो है फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाते हैं। अब हमारे पास था नज़ल, उतरा वो एक शख्स। अभी मैं कहती हूँ अनज़ल मुहम्मदुन हामिदन, उतारा मोहम्मद ने हामिद को। फेल भी आ गया, फाइल भी आ गया, मफूल भी आ गया, तो यहाँ पर ये बन गया फेले मुतअद्दी। क्लियर? और इस फेले मुतअद्दी को ये देखिए हरफ जर के साथ जब हम सर्फ करेंगे मजहूल को तो वो चेंज होगा, लेकिन बाबे इफ़आल को हमने कहा अनज़ला, हम इसको उनज़िला, फिर हम इसका मजहूल भी आराम से बना सकते हैं। मैं इसको फिर मजहूल का जो सीखा होगा ना वो भी मैं आपको बता दूंगी कि फिर मजहूल का सीखा क्या होता है। अभी मैं मजहूल की तरफ नहीं आऊंगी, बस इतना कहूंगी कि इससे मजहूल भी बन सकता है, सिंपल आराम से बन जाएगा मजहूल बगैर किसी तकलीफ के। तो फिर जो बाबे इफ़आल है उसका, बाबे इफ़आल का पहला तर्जुमा जो जब हम सिंपल किसी लफ्ज को हमें मजबूरन या हमें ज़रूरतन अगर हमें उसको बाबे इफ़आल में ले जाना पड़ेगा तो किस वजह से, क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है कि हम लाजिम को मुतअद्दी बनाने के लिए ले जाएंगे। जैसे हमने कहा अजलस, जलस को अजलस कर देंगे, अजलस युजलिसो इजलास। ओके, बाकी बहुत, जैसे हमने उस दिन भी कहा था ज़हक, अभी देखिए ज़हक, अभी इसको तर्जुमा करती हूँ। ज़ाहिका ज़ैदुन, ज़ैद हंसा, ज़ाहिका ज़ैदुन मुहम्मदन, ठीक है, मोहम्मद हंसा ज़ैद को। तर्जुमा ठीक हो रहा है? तर्जुमा ठीक हो रहा है? नहीं ठीक हो रहा। नहीं ठीक हो रहा, तो इसका मतलब है कि ज़हका लाजिम है। हम क्या करेंगे, मुझे ये है ज़हका ज़ैदुन, हम क्या करेंगे, हमें इसको मुतअद्दी बनाने के लिए हम इसको बाबे इफ़आल में ले जाएंगे, हो जाएगा अज़हका हसाया, हाँ, ज़ैदुन मुहम्मदन। क्या होगा तर्जुमा इसका? ज़ैद ने हंसाया, हाँ, हंसाया था, हंसाया ज़ैद ने मोहम्मद को। देखा तर्जुमा फिट हो गया ना, हंसाया ज़ैद ने मोहम्मद को। क्लियर, हमारा तर्जुमा हो गया। देखिए आंटी, ज़हका ज़ैदुन हंसा ज़ैद, अज़हका ज़ैदुन मोहम्मदुन, हंसाया ज़ैद ने मोहम्मद को। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं बाबे इफ़आल में, अब देखो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल तरीन हमारा बाब है ना, सबसे पहले बाबे इफ़आल ही है, उसको समझना, बाकी बहुत ईजी। एक दफ़ा हमारे लिए बाबे इफ़आल क्लियर हो जाए, बाबे तफ़ील क्लियर हो जाए ना, तो हमारे लिए सब बाब आसान हो जाएंगे। बहुत अच्छा अज़मत आपा, आपने कहा ज़ाहिका ज़ैदुन, ज़ैद हंसा, बात ख़त्म, यहाँ तक सेंटेंस हमारा ख़त्म। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ अज़हका ज़ैदुन मुहम्मदन, हंसाया ज़ैद ने मोहम्मद को। जो सबसे बड़ा हम गलती करते हैं ना, जो हम सबसे, मैं ज़्यादातर जो हम तर्जुमा और सुनती हूँ तो हमारी सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है ना, वो बाबे इफ़आल के तर्जुमे और मजहूल के तर्जुमे में, हम मजहूल और बाबे इफ़आल के तर्जुमे को मिक्स कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गलती होती है। देखिए हंसाया, हम अभी इसको मैं ये नहीं कहती इसको आप याद नहीं करिएगा क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप याद नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हंसाया ज़ैद ने मोहम्मद को, बाबे इफ़आल में फेल भी है, फाइल भी है, मफूल भी है, लेकिन जब हम मजहूल बनाते हैं ना तो हम मजहूल को वही कहेंगे उज़ हिकर, क्योंकि ये मजहूल का वजन है ना, उज़ हिकर ज़ैदुन। हम क्या करते हैं, हंसाया गया ज़ैद,
ہاں ابھی آپ دیکھو میں ترجمہ کرتی ہوں آپ کو، آپ نوٹ کریے گا اس ترجمے کو کہ کیا آپ کو مجہول میں باب افعال میں اور سمپل ترجمے میں فرق لگ رہا ہے. میں ترجمہ کرتی ہوں، آپ غور سے سنیں گے، غور سے. ضحک زید، ہنسا زید، خود ہنسا زید. نمبر 1 باب میں جگہ. اضحک زید محمد، ہنسایا زید نے محمد کو. اضحک زید، ہنسایا گیا زید کو. ترجمے میں فرق لگا آپ کو؟ ہنسایا گیا، جی ہنسایا گیا زید کو، خود زید نے ہنسایا محمد کو اور خود زید ہنسا. ہاں ترجمے میں آپ کو فرق لگ گیا ہوگا نا. تو یہاں پر ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں باب افعال اور مجہول کے ترجمے میں ایک پیاز کے چھلکے کا برابر فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق جو ہے نا قرآن کا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اوکے تو یہاں پر ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے باب افعال کو بنانے کا فائدہ یا ضرورت تب پڑتی ہے جب ہم فعل لازم کو متعدی بناتے ہیں. آنٹی آپ نے جو اضحے کا کہا یہ فعل مجہول باب کا ہے نا؟ جی مجھول باب کا. دیکھیں اسما میں نے ابھی آپ کو کہا کہ فعل لازم کو ایسا صرف نہیں کر سکتے، اس کے صرف کا طریقہ بہت الگ ہے. آپ کو پتا ہے جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے ذہب، اور جب ذہب کو میں جار و مجرور کے ذریعے سے متعدی بناؤں گی تو جب ہم جیسے سمپل صرف کرتے ہیں فعل مجہول کو ضرب کو جب ہم صرف کریں گے تو ہم کریں گے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. یہ ہم نے مجہول کو صرف کیا. لیکن جب ہم لازم کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کرتے ہیں تو ہم یہ ایسا صرف نہیں کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے ذہب، میں نے اس کو بنایا ذہب، ذہب بہی، ذہب بہما، ذہب بہم، ذہب. اس طرح سے پھر ہم پروناؤن صرف کریں گے، ہم فعل کو صرف نہیں کریں گے. یہ مجہول کا قاعدہ ہے جب متعدی بناتے حرف جر کے ذریعے سے. لیکن جب ہم متعدی بناتے ہیں دو باب کے ذریعے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں اضحک، اضحکا، اضحکو، اضحکت، اضحکتا، اضحکنا، اضحکتا، اضحکتما، اضحکتم، اضحکتی، اضحکتما، اضحکتن، اضحکتو، اضحکنا. تو یہاں پر جب باب پہ لے جائیں گے اور مجہول بنائیں گے تو پراپر طریقے سے ہم اس کو صرف کریں گے، جس طرح سے ہم باقی معلوم میں متعدی سے جب بنا کے صرف کرتے ہیں، کیونکہ یہ متعدی بن گیا. ابھی کلیئر؟ جی چلیے اچھا. ابھی جو دوسرا ترجمہ ہے فعل لازم کا، بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. فعل لازم کہہ رہی ہوں. جو دوسرا طریقہ ہے ہمارے پاس کیا نام ہے اس کا، باب افعال کو. ہاں باب افعال کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے، جو دوسری چیز میں بتاتی ہوں وہ ہے نمبر 1 تو ہو گیا باب افعال کا بنانے کا متعدی، اور دوسرا ہے کسی چیز کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس کے دخول کے لیے. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فاعل، اگر کوئی فاعل کسی زمانے میں یا کسی مکان میں یا عدد میں جب داخل ہوتا ہے، فاعل کا زمان، مکان یا عدد میں داخل ہونے کو ہم باب افعال میں لے جاتے ہیں. چلے میں اس کو کرتی ہوں. نمبر 2 جو ہے وہ دخول الفاعل فی الزمان، مکان و عدد. اوکے اچھا اس میں کیا آتا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو کہتی ہوں اصبح زید، زید صبح میں داخل ہو گیا. کلیئر؟
زمان ہے نا. اعرق زید. زید عراق میں داخل ہو گیا. اعشر القوم. قوم 10 کے عدد تک پہنچ گئی. اشر ہوتا ہے نا اعشر. مجھے لگتا ہے یہاں تک کافی ہے نا. آنٹی اس کی واپس سے ایک بار میننگ ہاں. آپ کہہ سکتے ہیں اصبح زید. اصبح زید. زید صبح میں داخل ہو گیا. دیکھیں عظمت آپا, طاہر آپا اور آپ نسیم آپا, صابر آپا اور روشن آپا, آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے نا؟ جی جی اچھا یہ دیکھیں, میں پہلے اوپر جو ہیڈ لائن لکھی ہے اس میں آپ دیکھیے گا, دخول الفاعل فی زمان او مکان او عدد. ٹھیک ہے, فاعل کا داخل ہونا زمانے میں, مکان میں یا عدد میں. اصبح زید. زید نے صبح کی, یعنی زید جو ہے وہ صبح میں داخل ہو گیا. اعرق زید. زید عراق میں داخل ہو گیا. عاشر القوم. قوم جو ہے وہ 10 کے عدد تک پہنچ گئی یا 10 میں پہنچ گئی. صحیح کلیئر. جی ہاں انشاءاللہ میں آپ سے کہتی ہوں نا, یہاں جنوری تک ہم لوگ جو ہیں دسمبر تک جو جتنی بھی ہماری کلاسز ہیں وہ اس طرح سے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ پراپر طریقے سے ہفتے میں 4 دن ہم گرامر پڑھیں گے, اور 5واں دن جو ہمارا ہفتے کا ہوگا, کیونکہ 5 گھنٹے ہم پڑھیں گے, تو اس میں ہم صرف اور صرف قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کریں گے, اور بیچ میں سے آیتیں لے کر آئیں گے, کیونکہ اگر ہم نے آنٹی پلیز چھلا کیا ہے لاسٹ میں کیا ہے؟ عاشر القوم. عاشر القوم. عشر کہتے ہیں نا, عشر 10 کو کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں نا, عشر یعنی 10. اشرا کہتے ہیں نا, مجلس کا ہے وہ. اشرا, بہت اچھا. تو عشر قوم 10 میں داخل ہو گئی. تو جہاں پر بھی اگر آپ کو باب افعال نظر آتا ہے, پاس میں آپ کو زمان اور مکان اور عدد نظر آتا ہے, تو اس وقت باب افعال جو ہے وہ اس وقت ہمارا باب افعال جو ہے وہ کسی کے داخل ہونے کی میننگ دے گا. جہاں پر بھی کوئی زمان ہو, کوئی مکان ہو یا عدد ہو. اب دیکھیں بہت عرق ہے یعنی عراق, کسی بھی کنٹری کا نام ہو یا کسی بھی شہر کا نام ہو یا کسی بھی بلد کا نام ہو, اور یہاں پر بھی کچھ اس طرح سے آ جائے, تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ باب افعال جو ہے وہ کسی کے داخل ہونے کی. اصبح, صبح, ہم نہیں کہتے صبح, مساء, ہم کہتے ہیں نا اصبح. کیا ہے یہ کانا کی بہنیں ہیں نا, کانے کی بہنیں وہی کانا کی بہنیں. تو جب کانا کو اور اس کی بہنوں کو, کانا کی کتنی بہنیں ہیں جس کو اس کو لے کے جاتے ہیں نا باب افعال میں, تو جب وہ باب افعال میں ہوں گے نا تو اس کا مطلب ہے داخل ہونے کی میننگ دیں گی. نہیں اچھے لامت سے عشرہ, تو یہ سب یہ گنتی کے فعل یوز ہو گئے. بہت اچھا, یہ گنتی کی میننگ میں آ جائے گا. بس 3 چیزیں جب بھی ہم دیکھیں گے کہ زمان, مکان اور عدد کی بات ہو رہی ہے, تو پھر اور وہ باب افعال کی میننگ اس وزن پہ آتا ہے. جب بھی زمان, مکان اور عدد باب افعال کے وزن پر ہوگا تو یہ داخل ہونے کی میننگ دے گا, فاعل کے داخل ہونے کی میننگ. صحیح جی کلیئر ہوا؟ بس کافی ہے آج کے لیے, میں آپ کو زیادہ تھکانا نہیں چاہتی. جو آخر کے جو لاسٹ کے باب ہوں گے نا, اس میں بہت ہم تیزی کے ساتھ, باب مفاعلہ کے بعد میں آپ کو بہت اسپیڈ کے ساتھ لے جاؤں گی. باب مفاعلہ کے بعد, کیونکہ وہ بہت ایزی باب ہے, اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ کوئی چیز ہے ہی نہیں, ہے تو صرف یہاں تک. یا ہاں باب افتعال و انفعال میں تھوڑا بہت ہے, لیکن وہ بہت ایزی ہے. اصل یہاں سے یہ جو باب افعال کا دخول کی میننگ ہے, یہ قرآن میں آتا ہے؟ ہاں بالکل آتا ہے. اچھا,
बहुत आंटी जरूरी एक तीसरा रह गया है ना, लास्ट दूसरी दफा करने का है, जो बाब तफील की मीनिंग देता है। बाब सईदा तफील के बनाने का तरीका होता है बाब सईदा ये बाबे हमारा तफील बाबे इफ़ाल खत्म हो जाएगा ना, ये पूरा उसकी मीनिंग है। बस ये- हाँ उसके बाद बस हाँ, थोड़ी ओके। सी 8 मीनिंग है, जिसमें से मैंने अभी आपको सिर्फ 2 बताई हैं। 8 मीनिंग है जिसमें सिर्फ मैंने अभी आपको 2 बताई हैं। बाकी जो हमारी 6 मीनिंग है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी, और फिर उसके बाद हम बाब तफील को शुरू कर देंगे। तो बाब तफील तो बहुत मज़े का बाब है, मुझे तो इतना मज़ा आता है बाबों को सर्व करना। तो काफ़ी है आज के लिए ना, थक गए होंगे आप भी। हाँ पहले हम जी इनको, आंटी। मैं सोचती हूँ हमें ये जो हम आज पढ़ा है ना हमने, पहले हम अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लें। 1 हफ्ता हमारे पास है, फिर हम जो है वो दूसरी मीनिंग की तरफ भी आएंगे, और फिर मजहूल को सर्व करना भी हम फिर करेंगे। तो अजमत आपा मुझे याद दिलाएंगे ना फिर मजहूल को हम सर्व कैसे करें? तो मैं थोड़ा सा वो आपको अभी तो बाबू ने लिख लिया जी। तो कि मुझे फिर लाजिम उसका इडली बनानी और फिजर के साथ उसको सर्व कैसा करना है उसको याद दिला। थैंक यू सो मच। तो बस हम एक सलवात पढ़ते हैं और यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं। खुदाया पाक परवरदिगारा, या अल्लाह हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और या अल्लाह हमारे गुनाहों कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। और या अल्लाह मैं हमेशा तुमसे ये दुआ करती हूँ कि खुदाया जिस तरह से तुमने अभी तक हमें कुरान के साथ जोड़ के रखा है, खुदाया यहाँ तक कि हम इस दुनिया से जब जाने लगे ना तो भी हमें तुम कुरान से जोड़ के रखना, ताकि कब्र में भी हमें कुरान सिखाया जाए, ताकि हम फिशारे कब्र से और कब्र की वहशत से और कब्र के सवाल और जवाब से हमें छुटकारा मिल जाएगा जब हम कुरान सीखते सीखते जाएंगे। और ए अल्लाह हम अपने दर्स का सवाब देते हैं चौदह मासूमीन अलैहिस्सलाम को, वहाँ से जो हमें सवाब मिले वो हमें हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, हमारे माँ बाप को, हमारे प्यारों को, और ए अल्लाह फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, शहीदों को अता फरमा। और ए अल्लाह हम हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम फ़लस्तीनी बहन भाइयों को निजात अता फरमा इस जुल्म से, इन जालिमों से, और हमारे इमाम मेहदी आखिर ज़मां का ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा। अच्छा एक और जल्दी सी चीज़ कहती हूँ, अज़मत आपा, सईदा आपा, नसीमा आपा, एलिज़ा, हम सबको कहती हूँ, और मुहद्दिसा आपा भी है ना, आवाज़ ही नहीं आ रही थी आज और साबिर आपा, सबको ये कहती हूँ लास्ट में कि आवता मंगल को हम जो करेंगे वो बाब इफ़आल की सिर्फ और सिर्फ मीनिंग करेंगे, और बाब इफ़आल की कुरान की आयतों से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुरान की आयतों से हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद प्रॉपर तरीके से जब हम बाब इफ़आल आ जाएगा तो फिर हम बाब तफ़ील में दाखिल होंगे, वरना हम बाब तफ़ील में दाखिल नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़।